ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ کر رہے تھے حضرت جی ابوبکر نے وہ دلیل دی تھی۔ دوسرا نمبر میں یہاں پہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں، شمس الدین صاحب یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، نیچے وہ کمنٹس کر رہے ہیں یہ وہ، تو ان کو میں لائیو سٹریم میں دعوت مناظرہ دے رہا ہوں کہ یہ اگر ان کا وضو ہے پکا پیٹا تو یہ آئیں، ان کو دراصل ڈاکٹر صاحب ڈسکرپشن میں لنک لگا دیں کال کا، یہ ذرا آئیں اور اس میں آگے وہ کریں بات، پتہ لگتا ہے کہ یہ کتنے باروں میں ہیں۔ جی جی بالکل جناب، کیوں نہیں، ہم تو یہ دیکھیں، یہ ڈسکرپشن میں نے کاپی کر کے اور یہ لنک لگا دیا ہے۔ شمس الدین صاحب آپ کو جو ہے وہ دعوت ہے کہ آئیں ہمارے پروگرام میں، جو ہے وہ آ کے گفتگو کریں، اور دوست جو ہیں وہ دیکھ لیں کہ خاکسار نے جو ہے وہ لنک لگا دیا ہے۔ کیوں جی لنک لگ گیا ہے نا نیچے؟ کنفرم کر دیں پلیز۔ اچھا یہ کمنٹس کی بات ہو رہی ہے جی جو ڈاکٹر فیس صاحب بک یا لنک یوٹیوب پر لاگے، جی ٹھیک ہے، شمس الدین صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، جلدی ذرا آ جائیں، بڑی مہربانی۔ جی جی تو سارے دوست دیکھ لیں، خاکسار جو ہے یہ دیکھیں، میں نے یہ لنک لگا دیا تھا، اور شمس الدین صاحب یہ ہم نے لنک لگایا ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، 421 افراد ابھی ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں کہ ہم شمس الدین صاحب کو لنک لگا دیا، اور ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ اگر گفتگو بات کرنی ہے تو آئیں، جس طرح باقی دوست آئے ہیں آ کے گفتگو کریں۔ دیکھتے ہیں کہ وہ آتے ہیں یا نہیں۔ بہرحال جلیل اللہ بھائی بہت بہت شکریہ۔ ہم جاتے ہیں احمد طارق صاحب کے پاس۔ بات سر یہ ہے کہ یہ جتنے بھی آپ اتنے مہذب انداز سے گفتگو کرتے ہیں، اور جب بھی آپ ان کے کسی جو بھی اپنے آپ کو عالمی سمجھتے ہیں، لیکن جب جی وہ بات کرتے ہیں اور بغض اور کینہ ان ظاہر ہوتا ہے، نظر آ رہا ہوتا ہے۔ جی جی اور ایک بالکل صاحب تھے وہ جو انہوں نے لمبی لمبی داڑھی لگائی ہوئی تھی، وہ پتہ نہیں کیا نام تھا، شاید لطیف صاحب کے جی پتہ جی کیا، وہ بھی جی اس طرح بات کر رہے تھے، تو پھر آپ نے ان کو کاٹ دیا۔ جی تو جی 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 ان کے سب سے مین پرابلم تو یہ ہے کہ یہ اخلاق ان کے درست نہیں ہے، جی احمد طارق اور بھائی اگر آپ تمیز۔ جلدی کر لیں، مجھے جی جی لگتا ہے جی شمس الدین صاحب نیچے اسٹریم میں موجود ہیں، میں ان ہاں، کو وہ لینا آ گئے تو چاہتا آپ ہوں۔ ان کو لے لیں، میں جی آپ کا جزاک پروگرام اللہ، سن رہا ہوں، جزاک ایسی اللہ، کوئی بات نہیں۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ صلی الجزا، بہت بہت شکریہ۔ تو یہ پیارے بھائیو یہ تھے ہمارے احمد طارق صاحب، ہم ان کو جو ہے ہم ان سے رخصت لیتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ محترم شمس الدین صاحب ہیں، ہم ان کو اسٹریم میں لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ڈاکٹر صاحب وعلیکم السلام، آپ آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل جا رہی ہے؟ صاف آواز آ رہی ہے شمس الدین صاحب، جزاک اللہ آپ کا ہماری اسٹریم میں آنے کا۔ شمس الدین صاحب ایک بہت بڑا مسئلہ یہاں پہ پڑا ہوا ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم پچھلے 2 پروگراموں سے جو 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 ہے نا غیر احمدی ہمارے بھائی ہیں، ان سے یہ کہہ رہے ہیں، بار بار درخواست کر رہے ہیں کہ ہمیں قرآن پاک سے حیات عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں کوئی آیت پیش کریں۔ بہت اچھا کیا کہ آپ تشریف لائے، کیونکہ انہوں نے ابھی تک حیات عیسیٰ کے بارے میں کوئی آیت پیش نہیں کی۔ آپ چونکہ ان کے جلسے وغیرہ میں بھی جاتے ہیں، آپ اتنے بڑے ماشاءاللہ ان کے عالم ہیں، تو ہماری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ حیات عیسیٰ کے بارے میں کوئی آیت پیش کر دیں تاکہ ان کی شرمندگی جو ہے وہ کچھ تو ختم ہو۔ جی جزاک اللہ۔ ڈاکٹر صاحب شکریہ۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ گھر میں سب خیریت ہے الحمدللہ؟ جی الحمدللہ شمس الدین صاحب بالکل خیریت ہے، اگر پرسنل کوئی بات ہے تو ہم فون لائن پہ کر لیں گے۔ نہیں میرا میں ایک صرف حال ہی جی پوچھنا چاہ بالکل رہا تھا بس۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ۔ ٹھیک آپ ہے۔ جی اچھا جی ڈاکٹر صاحب فرمائیں۔ ایسا ہے کہ آپ کو شاید اذان کی آواز آ گئی ہوگی شاید، آج منگل اگر تو تھوڑا نہیں ہے شمس الدین صاحب؟ آج منگل تو نہیں ہے، آج اتوار ہے۔ میرے خیال میں منحوس دن نہیں ہے آج کا۔ جی آپ یہ اب جی سمجھ اذان رہے پہ ہیں؟ اذان کی آواز آ رہی ہے، یہ کون سی نماز کی ہے محترم؟ ہمارے جو ہے یہ نماز اذان ہوتی ہے رات 10 بجے کے قریب۔ ٹھیک ہے یہ دیکھیں آواز آ تو گئی، آواز آ جی رہی جی ہے؟ جی 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 ایسے کریں آپ جلدی نہیں سے نہیں نا ہمیں پہلے حوالہ ایک دے دیں، سیکنڈ ایک سیکنڈ ہمیں ایک حوالہ دے سیکنڈ کے ہم آواز سب آ جائیں۔ گئی۔ اب اذان تک 5 منٹ انتظار کے بعد دوبارہ مجھے کال پہ لے لیں۔ چلیں آپ ٹھیک جزاک ہے، اللہ۔ آپ سے جناب ہم رخصت لیتے ہیں۔
جی جناب پیارے بھائیوں، یہ شمس الدین صاحب ہیں، یہ 5 منٹ بعد کہتے ہیں یہ آئیں گے. چلیں اچھی بات ہے، اتنی دیر میں شاید یہ کوئی کتاب شتاب سے کوئی حوالہ شوالہ بھی ڈھونڈ لیں گے. یہ لگتا ہے بغیر کسی حوالے کے ویسے ہی آ گئے تھے. اچھا شمس الدین صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ڈاکٹر صاحب وعلیکم السلام. جی جزاک اللہ، آپ دوبارہ تشریف لے کے آئے شمس الدین صاحب. ہمیں امید ہے کہ آپ اب دیکھیں آپ کی غیر حاضری میں بھی ہم بار بار پوچھ رہے ہیں حیات عیسیٰ سے متعلق کوئی قرآن پاک کی محکم آیت ہمیں بتلا دیں. کوئی صاحب تو آپ تشریف لائے ہیں، جزاک اللہ. قرآن پاک کی کوئی محکم آیت حیات عیسیٰ سے متعلق بیان کر دیں، جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب بہت دیر انتظار کرایا، اذان تو بڑی جلدی ختم ہو گئی. یہ آپ تو کے مجھے دوست ٹائم بتا دیجیے کہ میں معذرت خواہ ہوں، یہ فاروق صاحب جو تھے ان کی بیچاروں کی عادت اسی طرح کی ہے، بہت معذرت خواہ ہوں. جی فرمائیں. مجھے اب ٹائم بتا دے کہ میرے جو بولنے کا ٹائم ہے وہ مجھے آپ نے کتنا دینا ہے تاکہ میں اس دوران اپنی بات کو مکمل کر سکوں. جی شمس الدین صاحب، آپ اگر موضوع کے اوپر بولیں گے تو آپ کو اگلے 2 منٹ میں دے رہا ہوں، اس کے بعد دیکھیں گے آپ کیا بولتے ہیں، پھر ڈیسائیڈ کر لیں گے. ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ میں نے کچھ دیر پہلے جب یہ سننا شروع کیا آپ کا پروگرام، جی تو پہلے میں آپ کے پروگرام کے بارے میں اپنی رائے دوں گا، پھر آپ کے سوال پہ چلیں گے. آپ کا پروگرام جو میں نے دیکھا ہے، ذرا برائے مہربانی دوسروں کو ذرا کہیے گا ذرا صبر کا مظاہرہ کرے، کیونکہ میرے معاملے میں یہ صبر نہیں کرتے، تو آپ ان سے ریکویسٹ کر دیجیے گا. میرے کزن بھی ہیں. اچھا کوئی میں نے دوست جتنا بھی درمیان میں نہ بولے. جی 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 چلیں. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. میں نے آپ کا جتنا پروگرام دیکھا ہے ابھی تک، اور پہلے بھی میں آپ کی لائیو سٹریمنگ دیکھتا رہا ہوں، مگر میں اس لیے اس میں شریک نہیں ہوا جی کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی جو یہ سٹریمنگ ہے، مجھے یہ دیکھ کر اور سن کے، وہ سب سے پہلے معذرت پہلے میں عامر بھائی کا شکریہ ادا کروں، انہوں نے بڑا اچھا سوال کیا، مگر اس کے بعد جو آپ نے تبصرے کیے، جو کچھ ہوا، بہرحال میں آپ کے پروگرام کے ذریعے ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. آپ کا پروگرام دیکھ کر مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے جو لکھا ہوا ہے ملفوظات کے اندر، کہ جب مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب وہاں پہنچے تو جو ان کے ساتھ سلوک کیا گیا 1 سطر یا 2 سطر، تو آج یہی میں اسٹریمنگ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی طرف سے بھی اسی سنت پر عمل کیا جا رہا ہے، اور یہی کہا جاتا ہے 1 منٹ یا 2 منٹ. ڈاکٹر صاحب دیکھیے، یہ جو حیات عیسیٰ علیہ السلام والا موضوع آپ نے رکھا ہے، یہ 1-2 منٹ کی بات ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں، یہ آپ کے دوسرے جو مہمان ہیں یہ بھی سمجھتے ہیں. اس پہ اگر آپ نے کوئی پروگرام کرنا ہو تو پھر کسی دن بتا دیں لوگوں کو کہ یہ جو لائیو کالیں آپ اپنے پروگرام میں لیتے ہیں، آدھا پونا گھنٹہ لگاتے ہیں، سب کو چھوڑ دیں، اور انہیں یہ کہیے کہ ہم جو مسلمان ساتھی ہیں ان کو بھرپور موقع دیں گے، ایک بندہ آئے وہ ہم سے گفتگو کرے، اور جب اس کی گفتگو ختم ہو جائے تو پھر آپ کی طرف سے دوسرا بندہ اس پہ کوئی بات کرے، ٹائم طے کر کے توجہ کے ساتھ بات کرے. ابھی میں وفات عیسیٰ علیہ السلام پہ کیا گفتگو کروں، آپ کا ویسے ہی دیکھیں نا 2 منٹ تو 2 گھنٹے 11 منٹ تقریباً آپ کا پروگرام چل چکا ہے. تو اس کو ایسا کر لیجئے، میرا آپ سے مشورہ ہے کہ کسی دن پروگرام کر لیجئے، میں بھی اس میں انشاءاللہ شامل ہو جاؤں گا، اور اسی طرح بڑے پیار محبت کے ساتھ، کیونکہ لوگ سنیں گے. ڈاکٹر صاحب 1-2 منٹ دے دیجئے، بڑے عرصے بعد میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، تو تاکہ لوگوں کو بات سمجھنے میں موقع ملے. ابھی آپ 1 منٹ میں کوئی آیت پیش کروں گا، اس پہ تبصرہ سارا آپ نے کرنا ہے، چونکہ پھر مجھے بولنے کا موقع نہیں ملنا. اعظم سیفی بھائی کریں گے، جری اللہ صاحب کریں گے، ایک یہ جو صاحب ہے جنہوں نے کک بنائی ہوئی ہے یہ کریں گے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی ٹائم رکھیے، بتا دیجئے 3 گھنٹے پروگرام ہوگا، ہر فریق کو 10-10 منٹ دیے جائیں گے، وہ اپنا موقف بیان کرے، سوال نوٹ کرے، پھر اس کے جواب دے. اس طرح تو وہ مجھے پھر دوبارہ ایک دفعہ کہنا پڑ رہا ہے کہ مجھے وہ سنت یاد آ رہی ہے، برا نہ بنائیے گا میری بات کا. جی فرمائیے آگے، میں سنتا ہوں اب آپ کی بات. شمس الدین صاحب بات یہ ہے، آپ کو دیکھیں آج کے خاص طور پہ پروگرام میں تو آپ کو یہ شکوہ کرنا بنتا ہی نہیں ہے. ہم نے 20 منٹ اپنی بات کی، اس کے بعد مسلسل آپ کے دوستوں کی کالیں لے رہے ہیں. عامر نذیر صاحب کو اتنا لمبا وقت دیا، عامر حق صاحب کو اتنا لمبا وقت دیا. تو دیکھیں عوام جو ہے وہ بے وقوف نہیں ہے، عوام دیکھ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا وہ سن رہی ہے اور آئندہ بھی دیکھیں گے. دوسری بات یہ ہے، آپ نے یہ جو ذکر کیا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام
के बारे में, और ये सनाउल्लाह अमृतसरी साहिब वाला जो वाक़या था, एक तो आपका शायद हाफ़ज़ा बहुत कमज़ोर है, अब माफ़ कीजिएगा, मैं भी बहुत माज़रत ख़्वाह हूँ, आपको आप सबके सामने मुझे बात खोलनी पड़ेगी। 2015-2016 में जब हमारे स्काइप पे आपस में गुफ्तगू होती थी मोहतरम, तो ये कादियान जाने वाली बात इजाज़ अहमदी के इसके से मुतल्लक जो थी, खाकसार ने आपके सामने ये पूरी खोल कर पेश की थी और आपको अल्हम्दुलिल्लाह लाजवाब किया था। क्यों? हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहाँ पर वाज़ेह तौर पर ये बयान किया है, वहाँ पर मनाज़रिए के लिए नहीं बुलाया था, ये आप लोग गलत बयानी करते हैं। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहाँ पर सलाल्लाह अमृतसरी साहब को बुलाया था कि आपने ये जो झूठा दावा किया है कि मिर्ज़ा साहब की कोई पेशगोई पूरी नहीं हुई, मैं पेशगोई बयान करूँगा, उसके सबूत बयान करूँगा, उसके गवाह बयान करूँगा, और आपने उसके जवाब में सिर्फ ये कहना है कि पूरी हुई है या नहीं। ठीक है, ये बात थी और उसके मुअय्यन अल्फाज मैंने आपको दिखलाए थे। इसलिए मेरे भाई ये अच्छा नहीं लगता। एक बात आपको मैं पहले बतला चुका हूँ और आपको उस वक्त समझ आ भी गई थी, अब आप फिर लाइव स्ट्रीम में ये वही बात दोहरा रहे हैं, और मैंने ये देखा है आप अक्सर ये बात पेश करते हैं। इसलिए अगर आप कहेंगे तो मैं वो हवाला अगली दफ़ा लोगों को दिखा भी दूंगा। आप ये बताएं, आप चलें, आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मैं आपको जाते जाते हम इसका भी इंतज़ाम करेंगे, इंशाल्लाह आपको हम बुलाएंगे, हम पूरी डिबेट करेंगे इसके ऊपर आपके साथ, चाहे बेशक अगले हफ्ते का रख लें। शमसुद्दीन साहब, आपको हम बराबर का वक्त देंगे, आपने अपना हयाते ईसा का अकीदा साबित करना है, आप हिम्मत करें, हम आपको बराबर टाइम देंगे। ठीक है जी। दूसरी बात ये है, और ये मेरी अभी आपसे ये दरख्वास्त है कि जाने से पहले खुदारा हम उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करेंगे। मैं सब दोस्तों को कहूँगा कि अभी कमेंट ना करें, एक मुहकम आयत कुरान पाक की हयाते ईसा से मुतल्लक बतला दें, सिर्फ एक आयत का सवाल है, कोई कमेंट नहीं करेगा उसके ऊपर। जज़ाकल्लाह। डॉक्टर साहब, एक मुझसे से गुजारिश करने की इजाजत है, डॉक्टर फिर इन साहब का माइक बंद कर दें, इनको बहुत शौक होता है बीच में बोलने का। जिस दिन सुनिए डॉक्टर साहब, सुनिए डॉक्टर साहब प्लीज सुनिए, जिस दिन गुफ्तगू होगी उस दिन बेशक इन साहब को ले आइएगा, ये अपना शौक पूरा कर लें। अभी 1 मिनट इनको रोक दे, भी आप और मैं गुफ्तगू कर रहे हैं, 1 मिनट की करनी है, फिर शमस साहब अपनी बात पूरी कर लें। एक गुजारिश सिर्फ, हाँ, इनको बाद में कमेंट्री करने दें। डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक है, आपने बहुत अच्छा किया, मैं आपका नहायत मशकूर हूँ कि ऐसा कोई प्रोग्राम होना चाहिए जिसमें हम खुल के बात कर सके ना। तो आप ऐसा कर लीजिए कि अब आपने कहा 2015 वाली बात को स्काइप पे हुई, ऐसा करते हैं इसी तरह किसी दिन, ये जो आपका दिन लाइव स्ट्रीमिंग का है, इससे हटकर आप कोई एक दिन फिर दोबारा रख लीजिए। मेरा ख्याल है मंगल का ही बेशक रख लीजिए, क्योंकि आपकी किताबों में मंगल के दिन की बड़ी अहमियत है। तो मंगल वाले दिन आप और मैं बैठकर, ठीक है, लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे, और उसके अंदर हमारा यही मौजू रहेगा कि वो जो आपके बानी जमाते अहमदिया, क्योंकि मुझ पर बहुत तराज होता है कि जी आप मिर्ज़ा साहब का नाम ठीक नहीं लेते, तो मैं अब ये सोच रहा हूँ कि मैं अपनी वीडियोस के अंदर बानी जमाते अहमदिया कहना शुरू कर दूं, ताकि जो अहमदी हजरात हैं उनको बुरा ना लगे। तो बानी जमाते अहमदिया ने जो ये कहा था कि सुमन बुकमन होके आपको वो सारा काम करना पड़ेगा, तो इस पे आपकी मेरी लाइव स्ट्रीमिंग एक तय हो चुकी है। इंशाल्लाह हम ये अपना टेलीफोन के जरिए सारी बात तय कर लेंगे। अभी मैं इसलिए कोई आयत पेश नहीं करूंगा क्योंकि अब हमारा मुनाजरा तय हो चुका है इस पे। ठीक है, चलें, ठीक है, इंशाल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया टाइम देने का, बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी सलीम भाई। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने शम्स साहब को रिमूव कर दिया है, कोई बात नहीं। मैं अर्ज यही करना चाहता था, ये उन्होंने कुछ बातें की हैं शम्स साहब ने, मैं उस पर कमेंट करना चाहता था, शम्स साहब गुस्सा कर गए, बहरहाल अभी सुनेंगे वो आराम से। आमिर साहब ने, उन्होंने कहा जी बहुत ही अच्छा सवाल किया, मैं जो है ना उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो आमिर साहब ने जो बहुत अच्छा सवाल किया था ना, उसका जो बहुत अच्छा हमने जवाब दिया, वो शायद सुनने से रह गया, उस वक्त ये नफल पढ़ने लग गए थे। तो अल्लाह करे बाद में जब स्ट्रीम खत्म हो तो वो बहुत अच्छा जो जवाब हमने दिया है वो भी ये सुन लें, फिर इंशाल्लाह वो उनको तसल्ली हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि सनाउल अमृतसरी साहब से सलूक का आपने बहुत ही इनको आला और अच्छा जवाब दिया। उसका एक और जवाब है, वो ये है कि जनाब पाकिस्तान के अंदर अहमदिया मुस्लिम जमात को, सिर्फ एक बंदे को नहीं,
पूरी की पूरी जमात, लाखों के हिसाब से वो अफराद हैं, बिल्कुल एक लफ्ज कहने की भी इजाजत नहीं है। मौलवी हजरात कॉन्फ्रेंसें करते हैं, खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस, ये जो मोहतरम जनाब शमस साहब हैं, ये खुद कई कई घंटे की लाइव प्रोग्राम करते हैं। आज तक किसी अहमदी मुसलमान को इन्होंने कॉन्फ्रेंस में बुलाया है? इनसे मेरी दरखास्त है कि अगली दफा एक कॉन्फ्रेंस करें जिसमें ये खुद जाएं, साथ रबुआ से या कहीं से भी एक अहमदी मुसलमान मुनाजिर को ले जाएं और इन्हें कहें जी आज हम दोनों, मैं हूं वहाबी या अहले हदीसों का नुमाइंदा और ये हैं अहमदी मुसलमानों के नुमाइंदे, या ये कह लें जी ये कादियानियों के नुमाइंदे, जो भी इनको अच्छा लगे। हम दोनों एक एक घंटा आज तकरीर करेंगे, मैं हयात मसीह पर तकरीर करूंगा, ये मेरा रद्द करेंगे, तो होगा वो जिस जगह ये चाहें तय कर लें। पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियल हुकूमत के हुकूमती सतह पर अहमदी मुसलमानों पर मुकम्मल तौर पर अपनी मौक़िफ़ पेश करने पर पाबंदी लगाकर जब बंदे हमें ये कहते हैं ना आके कि जी आप हमें मुनासिब टाइम नहीं देते, तो पता नहीं क्यों उनको बिल्कुल जरा बराबर भी शर्म भी नहीं आती। और रह गया सनाउल्लाह साहब का मामला, तो वो आपने बात वजाहत कर दी। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम मुनाजरों से बहुत देर पहले ही जो है वो किनारा कशी इख्तियार कर चुके थे कि मुनाजरा अब मैं नहीं करूंगा। हाँ, जब उन्होंने मुनाजरे किए हैं, मुनाजरा कह के मुनाजरा किया है, तो दोनों को बराबर वक्त मिलता था। मोहम्मद हुसैन बटालवी हो या वो बशीर मौलवी बशीर साहब हो या और ईसाई था जिसके साथ वो जंगे मुकद्दस के नाम से किताब भी छपी हुई है, अब्दुल्ला आतम था, सबको मुनाजरा के उसूलों के मुताबिक बराबर टाइम मिलता था। अच्छा, अभी ये शमस साहब कहते हैं जी मुझे 1 मिनट आप देंगे, आप मुझे एक आयत मैं पढ़ूंगा, तो वो अभी पीछे 3 घंटे शम्स साहब को मैंने दिए हैं, 3 घंटे। अब देखें ना, 3 घंटे हर वक्त मेरा मुतालबा था कि एक आयत पूरी पढ़ दे, तो बहाना इनका तो मैं वुजू करके नहीं आया। तो मेरी दरखास्त है कि ये जो आपने तय किया है ना प्रोग्राम, ये आपने भूलना नहीं कि इनसे कहना है कि जब प्रोग्राम में आए तो कम से कम वुजू करके जरूर आना है। वो ना हो कि हम 4 घंटे का प्रोग्राम करें, आपसे एक आयत का मुतालबा करें, आप बहाना कर दीजिए मैं तो वुजू ही नहीं करके आया। उसके बाद ये कहते हैं जी मैंने आयत पेश की ना, तो आपके बंदों ने उस पर तबसरा करना है, मुझे मौका नहीं देना। इसके बारे में मुझे शेर याद आया, वो सुना के मैं इजाजत चाहता हूँ। कहते हैं कि इरादे सोचता हूँ, बांधता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। तो इनका हिसाब वो था कि आयत अगर होती तो आपके 5 बंदे आए हैं, कोई एक बंदा ही पेश कर देता, लेकिन 5 मुजाहिदों ने टाइम पूरा लिया, लेकिन एक भी आयत पेश नहीं की। और आइंदा भी ये जो मुनाजरे की बात कर रहे हैं ना, मैं लाइव चूंकि ये बात हुई है, मेरी दरखास्त ये है कि मुनाजरा एक बंदे से होता है, 5 बंदों से एक बंदे का मुनाजरा नहीं होता। अगर आपने मुनाजरा करना है, हम तो पहले कहते हैं कि जिसने मुनाजरा करना है वो जिस इन 5 बंदों में से जिस बंदे पे हाथ रखे कि इससे मैं मुनाजरा करना चाहता हूं, बेशक लॉटरी डाल लें, अगर किसी से आपको डर लगता है इनमें से, तो आप 5 पर्चियां डाल लें कि इसमें से किससे मेरा मुनाजरा होगा, एक ही बंदा आपसे मुनाजरा करेगा। और दोनों तरफ, जिस तरह आजम सैफी साहब के बारे में वो कह रहे थे जी ये त्रियाकुल करूब साहब जो हैं ये होंगे हेड क्लर्क और मेरी तरफ से होंगे नजीर, वो कोई मुनाजरा नहीं होता। मुनाजरा यहाँ लाइव में ये है कि 2 बंदे होंगे लाइव के अंदर, वो खुद ही मैनेज करेंगे और खुद ही उस प्रोग्राम को चलाएंगे, शरायत वही तय करेंगे और शरायत भी लाइव तय करें, लोगों को पता चले। आजम सैफी साहब लाइव आ जाते हैं, सॉफ्टवेयर के जरिए लाइव आना है, इसमें कौन सा मसला है, आप भी लाइव आ जाएं यहाँ सारों के सामने, आप शरायत तय करें, पता चल जाएगा। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। जी फरमाएं डॉक्टर साहब। मैं जैतून आतम की बात का और ये शमसुद्दीन साहब ने जो सनाउल्लाह अमृतसरी साहब की बात की है ना कि मुझे आप सुन्नत या वो सुन्नत पे अमल करते हैं मिर्ज़ा साहब की, उसका जवाब देना जरूर समझता हूँ कि इसने हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम की ज़ात पर अटैक किया है। फिर ये कहते हैं कि हम इखलाक मोहम्मदी वाले हैं, हम ही बड़े जनाब पक्के मुसलमान हैं। तो सबसे पहले मैं जैतून एफएम वाले की बात करता हूँ, जो ये कहता है कि डॉक्टर साहब आपने जब मेरा नाम देखा तो आपने लिया नहीं, फिर जब मैं फारूक के नाम से आया तो आपने ले लिया, तो डर के आप घबरा गए। और फिर कहते हैं कि जी आप सिराज मुनीर का यहाँ नाम नहीं लेंगे, मुझे पता है कि आप घबराएंगे। डॉक्टर साहब आप जानते हैं कि आपने 39 मिनट की वीडियो बनाई है सिराज मुनीर के ऊपर ही, आपने बड़े तफसील के साथ इसका जवाब दिया। उसके बाद फिर इस स्ट्रीम में 3 बंदे आए, 3 बंदों ने जिक्र किया कि आपने सिराज मुनीर का दावा किया, आपने कहा नहीं मैंने ऐसा दावा नहीं किया। तो क्या इस स्ट्रीम में आने वाले हर बंदे को अलग से जवाब दिया जाए कि नहीं किया नहीं किया नहीं किया नहीं किया? जी अजीब चीज है। दूसरे नंबर पे फिर कहते हैं कि जी आप डर गए हैं, घबरा गए हैं। डॉक्टर साहब स्ट्रीम का किसने ये कहा मैसेज आपको किया कि मैं डॉक्टर साहब पाकिस्तानी जनाब अदालत को जाऊंगा, तुम वीडियो डिलीट करो? डर किसमें है? उस बंदे ने समझ जाओ डर किसमें है। अब चलते हैं शमसुद्दीन साहब की बात को। शमसुद्दीन साहब कहते हैं कि जी मैं जब चीन में आया तो वहाँ के लोग ये देख रहे थे जी, मैं 3 वो हमारे जो लोग हैं वो 2 तहरीरें बोलेंगे, फिर घंटा घंटा उसके लेक्चर देंगे।
हजरत मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी का अक्सर से ज्यादा सब मुखालफिन अहमदियत को चैलेंज दिया, ललकारा कि आओ मुझसे मुकाबला करो, आओ मुझसे मुनाजरा करो, आओ मुझसे मुबाला करो। उस मुबाला करने वाले में सनाउल्लाह अमृतसरी का नाम भी था, जो 52 नाम हजूर ने लिखी अपनी किताब अंजाम आते में। सनाउल्लाह अमृतसरी साहब आए? बिल्कुल भी नहीं आए। मुनाजरे के लिए आए? बिल्कुल भी नहीं आए। मुनाजरे के लिए वो कब आया? जब हजूर ने अपनी किताब अंजाम आते में, जो हजूर ने वो रिसाला लिखा है मकतूब अहमद में, हजूर ने उस किताब में ये लिखा कि मैं आज तक इंतजार करता रहा हूं कि कोई बंदा मुनाजरे के लिए आए, लेकिन नहीं आए, और आज इस मुनाजरे की रस्म को मैं खत्म करता हूं। हजूर ने जब वहां पे कसम खाई, कसम खाने के बाद पीर मेर शाह गोलवी कहते हैं जी मैं मुनाजरे करने के लिए तैयार हूं। जब एक बंदा कसम खा के कह रहा है कि मैं नहीं करता, दूसरा बंदा कहता है मैं करने को तैयार हूं। सनातन अमृतसरी साहब कहते हैं मैं करने को तैयार हूं। अब मैं बताता हूं कि कौन भागा था। डॉक्टर साहब ये सुने, हजरत मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम की किताब है रूहानी खजाना, जिल्द 19 सफ़ा नंबर 123, इजाज़ अहमदी ज़मीन में नज़ुलुल मसीह। इसमें हजूर फरमाते हैं, बस अगर मौलवी सनाउल्लाह साहब ऐसे चैलेंज के लिए मुस्तैद हों तो सिर्फ तहरीरी खत काफी ना होगा, बल्कि उनको चाहिए कि एक छपा हुआ इश्तिहार इस मजमून का शाया करें कि इस शख्स को और इस जगह मेरा नाम बतसरी लिखें, मैं कज़्ज़ाब और दज्जाल और काफिर समझता हूं, और जो कुछ ये शख्स मसीह मौद होने और साहिब इल्हाम और वही होने का दावा करता है और इस दावे का मैं झूठा होने यकीन रखता हूं, और खुदा मैं तेरी जनाब में दुआ करता हूं कि अगर ये मेरा अकीदा सही नहीं है और अगर ये शख्स फिर वाकई मसीह मौद है और फिर वाकई ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं, तो मुझे इस शख्स की मौत से पहले मौत दे दे। और अगर मैं इस अकीदे में सादिक हूं और ये शख्स दर हकीकत दज्जाल, बेईमान, काफिर, मुर्ताद और हजरत मसीह आसमान पर जिंदा मौजूद है, जो किसी नामालूम वक्त फिर आएंगे, तो इस शख्स को हलाक कर और फितना और तफरका दूर हो और इस्लाम को एक दज्जाल और मगवी और मिज़िल से ज़रत पहुंचे। आमीन सुम्मा आमीन। मैं शमसुद्दीन साहब जी ये पूछता हूँ कि क्या सनाउल्लाह अमृतसरी साहब ने या उसके मद्दे मुकाबल उसके पैरोकार में किसी एक बंदे ने इस तहरीर का इकरार किया? किसी एक बंदे ने मुकाबले में ये तहरीर लिखी है? किसी ने भी नहीं लिखी। हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम आखिरी वक्त तक ललकारते रहे, कोई बंदा मैदान में नहीं आया। इवन के फिर आखिरी फैसले के नाम से एक इश्तिहार तय किया, उस इश्तिहार में भी किसी बंदे का जवाब देने की हिम्मत नहीं है, फिर वो आखिर में नाकामी हसद की मौत मरे हैं। उसके बाद फिर डॉक्टर साहब हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने बड़ी मुतअद्दिद मकामात पे बुलाया, कोई बंदा भी मुकाबल पर नहीं आया। हमेशा मुखालफिन की तरफ से उज़र, बहाने और इस तरह की बातें, ये कभी भी मुकाबल पर नहीं आए। जी जज़ाकल्लाह। अच्छा मोहतरम जरीला भाई, आपने जब कहा है ना कि कोर्ट में वहाँ पे लेके गए हैं, तो ये मैं देख रहा हूँ फैसल फारूक साहब को ये लगा है कि गोया आपने कहा है, आपने ज़िया रसूल साहब की बात की है। फैसल फारूक साहब आप की नहीं, बल्कि वो ज़िया रसूल साहब ने झूठे तौर पर डॉक्यूमेंट्स बनाए जिसमें प्यारे दोस्तों उन्होंने ये दावा किया कि उनको बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान हो जाएगा माली तौर पर अगर उनकी वीडियो का जवाब देने के लिए जरीरुल्लाह भाई या मैं इस्तेमाल कर लें। ये देख लें जी, ये मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत इनका ये हालत है। और मैं कुछ दरखास्त जी अर्ज ये है कि बड़ी मेहरबानी है, फैसल फरूक साहब को आपने मुजाहिद ख़त्म नबूवत नहीं कहना। ठीक है, वो इसलिए कि अभी ये लाइव में आके कह रहे थे कि जनाब मैं बोलता हूं तो ये डर जाते हैं सारे। तो लाइव के अंदर मैंने इनको कहा था कि मेरा चैलेंज है, मेरे साथ मुनाजरा कर ले। मैं 5 घंटे का मुनाजरा कर चुका हूं, आप बेशक उसको 10 घंटे चलाएं, अगला बंदा ही थक के छोड़ता है। अच्छा, अभी ये इसको इनको मैंने मैसेज किया है, ये पहले भी वही कमेंट कर रहे थे जी, मेरे मुझसे देखें बात नहीं कर रहे, मुझसे डर रहे हैं। मैंने कहा जी खत्म नबूवत के नाम पर, खत्म नबूवत के मौजू पर मेरे साथ मुनाजरा कर लें। तो कह रहे हैं मैंने कब कहा है मैं मुजाहिद खत्म नबूवत? खबरदार, मुझे किसी ने मुजाहिद खत्म नबूवत कहा? मैंने कौन सी, ये कमेंट चल रहे हैं उनके ही, कि मैंने कब कहा है मैं मुजाहिद खत्म नबूवत हूं? कि जब लाइव पे आते हैं तो कहते हैं जी मेरा नाम सुन के भी ये डरते हैं, तो जब इनको खत्म नबूवत के मुनाजरा लाइव के लिए बुलाया जाए तो कहते हैं जी मैं तो मुजाहिद खत्म नबूवत ही नहीं हूं, मैंने कभी कहा है भाई मैं कोई क्या? ये इनका हिसाब है। तो बाकी इनको चलने दें, आप प्रोग्राम जारी रखें। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह तआला जज़ा। अब प्रोग्राम को प्यारे दोस्तों 2 घंटे 28 मिनट होने वाले हैं, और अगरचे मैं देख रहा हूँ कि एक आधे दोस्त जो हैं वो नीचे मौजूद हैं। अबैदुल्लाह लतीफ़ साहब हैं, मोहम्मद ज़ाहिद साहब हैं। अबैदुल्लाह लतीफ़ साहब और मोहम्मद ज़ाहिद साहब 2.5 घंटे हो गए हैं, और मैं इसलिए आपका नाम यहाँ पे ले दिया है क्योंकि आप लोगों की ये आदत है कि फिर अपनी स्ट्रीम में जाके कहते हैं देखिया मेरी कॉल नहीं लगी। हालांकि ये जितने भी दोस्त आए थे, ये फारूक साहब आए, ये जनाब शमसुद्दीन साहब आए, आमर नज़ीर साहब आए, आमर हक साहब आए, ये आप सबके उस्ताद हैं जिनकी हमने चले सारे नहीं होंगे, ये फारूक साहब तो बिल्कुल बेचारे वो
क्या के बारे में कुछ नहीं कहता, लेकिन बाकी जो हैं वो तो आपके उस्ताद हैं। शमसुद्दीन साहब, इतना बड़ा आपका नाम, और आमिर हक साहब हैं जी, और आमिर नज़ीर साहब। तो इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आज प्रोग्राम को 2.5 घंटे हो गए हैं, मैं आपकी कॉल नहीं ले सका। इंशाल्लाह किसी वक्त और सी, इंशाल्लाह अगले इतवार में आप आ जाइएगा। किसी दोस्त ने अगर कोई बात करनी है मुख्तसरन तो ठीक है, वरना खाकसार दोस्तों से इजाज़त लें। डॉक्टर साहब, वो जो आपने स्काइप कॉल की बात की थी ना कि आपने हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम की किताब इजाज़ अहमदी से हवाला दिया था, उसके ऊपर मैं छोटी सी बात करना चाह रहा था कि जो ये कहते थे ना कि सनाउल्लाह मरसरी साहब कादियान आए थे तो मिर्ज़ा साहब ने कोई जवाब नहीं दिया, तो वो बात आपने बिल्कुल दुरुस्त की थी कि वो मुनाज़रे की नीयत से आए थे। हजूर ने कहा था कि इन 3 पेशगोइयों के पवाएं, एक ये जिसका मैं हवाला दे चुका हूँ, दूसरा हजूर ने ये बात बयान फरमाई थी कि अगर वो इस नीयत से आए कि मेरी पेशगोई को परखें और मेरी एक पेशगोई को गलत निकालने में 5 रुपया इनाम दिया जाएगा, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं हुई कि वो गलत साबित कर दें। बिल्कुल बिल्कुल, जज़ाकल्लाह। आज़म सैफी साहब काफ़ी देर से खामोश हैं। आज़म सैफी साहब, आपने कोई बात करनी है आखिर पे? जी, बस इंतजार में ही रह गए आज तो कि शायद कोई पेश करेगा हयात मसीह की दलील। जी बिल्कुल। इसी उम्मीद पर कट गए कि चलिए ये आए हैं तो ये तो कुछ ना कुछ पेश करेंगे। फिर हाँ वो जी, हमारे जैतून साहब आए नाम बदल कर, मैंने कहा चलिए ये तो कुछ ना कुछ आयत पेश करेंगे, इन्होंने वादा भी किया है। हाँ जी, बिल्कुल फिर बिल्कुल। शमसुद्दीन साहब आए, उनसे तो मुझे 100% उम्मीद थी। मैंने कहा ये तो बेचारे अजान सुन के बावजू होकर आए हैं, ये तो इस बार कर ही देंगे, लेकिन बस इंतजार जो था वो इंतजार ही रह गया। बहरहाल ये जो अभी जरीउल्लाह भाई ने बात कही है, ये हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने जो है वो सनाउल्लाह मरसरी साहब को बुलाया था एजाज़ अहमदी में और उनको कहा था, तो सनाउल्लाह मरसरी साहब ने इसका जवाब दिया था इल्हामात मिर्ज़ा में, और जवाब उनका ये था कि मेरे अंदर जुर्रत नहीं है कि मैं आपसे मुकाबले के लिए आऊँ। तो थोड़ी सी बात एक ये भी इसमें मैं ऐड कर दूं, जैसे भी ये जरीउल्लाह भाई बता रहे थे कि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने उनको सिर्फ एक बात के लिए नहीं बल्कि 3 बातों के लिए कहा था, और कहा था कि अनकरीब ये 3 निशान इनसे जाहिर होंगे। एक तो ये कि तहकीक की गरज से पेशगोइयों की पड़ताल के लिए कादियान में हमारे पास नहीं आएंगे। और देखें सनाउल्लाह मरसरी साहब की जो गर्ज थी आने की, ना तो पेशगोइयों की तहकीक की गरज से थी कि पेशगोइयों की पड़ताल करें, तहकीक करें। दूसरा ये कि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के पास नहीं आए थे। तो हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की ये पेशगोई पूरी हुई। इसी तरह हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने कहा अगर वो इस उसूल पर कायम हुए कि झूठा सच्चे की जिंदगी में मर जाए तो वो जरूर हलाक होंगे, लेकिन इसके ऊपर भी जो है ना वो उन्होंने अप्रैल 1907 में इनकार कर दिया था कि आपकी ये तहरीर मुझे मंजूर नहीं है। इसी तरह एजाज अहमदी के मुकाबिल पर उनको बुलाया था, उसमें भी वो सामने नहीं आए थे। तो ये जो शमसुद्दीन साहब हवाले देते रहते हैं सनाउल्लाह मरसरी साहब के, एक मरतबा ज़रा गौर फिक्र से उनकी किताबें वगैरह पढ़ भी लिया करें और देखा किया करें कि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की सदाकत को किस तरह से वो साबित करके गए हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जज़ाकुमुल्लाह ताला अहसन जज़ा। और इसमें जैसा कि प्यारे भाइयों, ये हमारे जो प्यारे दोस्त हैं इन्होंने जिक्र किया कि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने एक नहीं बल्कि 3 बातों के से मुतल्लिक ये जो इनके थे सनाउल्लाह मरसरी साहब, इनको चैलेंज दिया था, और तीनों बातों में सनाउल्लाह मरसरी साहब जो थे वो नाकाम रहे थे। और इससे पहले कि खाकसार जो है वो इस स्ट्रीम को ख़त्म करे, खाकसार वो जो तीनों बातें हैं वो अपने दोस्तों को दिखलाना चाहता है ताकि दोस्तों को ये पता चल जाए कि हम कोई अपनी तरफ से ये बात नहीं कर रहे। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्होंने ये बात वाकई की थी। और ये देखें इजाज़ अहमदी का ये हवाला है प्यारे भाइयों, और हज़रत मसीह ने फरमाया था मौलवी सनाउल्लाह के ज़रिए से अनकरीब 3 निशान मेरे ज़ाहिर होंगे। वो कादियान में तमाम पेशगोइयों की पड़ताल के लिए मेरे पास हरगिज़ नहीं आएंगे, और सच्ची पेशगोइयों की अपने कलम से तस्दीक करना उनके लिए मौत होगी। ये मौलवी साहब वहाँ पे गए कादियान, हिंदुओं के महल्ले में रह के और वहीं से वापस आ गए थे। और फिर ये दूसरा चैलेंज था, और ये तीसरा चैलेंज तो बिल्कुल ही ब्लैक एंड वाइट। हजूर ने फरमाया ये मैं एक कसीदा लिख रहा हूँ, इसके जवाब में इतने अरसे के अंदर अंदर कसीदा लिख दो तो फिर भी तुम सच्चे, ठीक है जी। लेकिन सनाउल्लाह, और हजूर ने यह भी फरमाया था, मुझे जहाँ तक याद है, कि और मौलवियों को भी अपने साथ मदद के लिए बुला लो। लेकिन सनाउल्लाह मरसरी साहब ने झूठे साबित होना था। अल्हम्दुलिल्लाह तीनों बातों में झूठे साबित हुए।